Good afternoon, everyone. I welcome you all to today's seminar on supply chain management practices and its performance effectiveness. First of all, I welcome the dignitaries on the dais, respected Principal Sir, Dr. Sanjeev Kumar Das, MBA HOD Ma'am, Dr. Nandita Mahapatra, and we are extremely delighted to have with us Mr. Sudhanshu Sekhar Swain, Assistant General Manager, Procurement Department, Reliance Retail Limited. Now, I would like to request Principal Sir to felicitate our guest with bouquets, please. I request our dear student to assist Principal Sir in this. Thank you so much. Mr. Sudhanshu Swain is having over 22 years of accelerated general management experience in the retail, FMCG, fresh merchandise, apparel, ceramics and processing industries. He has held leadership roles in companies like Reliance Retail, Future Consumer Limited, McCain Foods and Vegicart Marketing Private Limited, and has successfully led large teams, managed high-value budgets and driven strategic initiatives in sourcing, vendor relations and logistics. Mr. Swain holds an MBA with a specialization in finance and personnel and is well versed in ERP systems and retail technologies. His dynamic approach and deep industry insights make him a valuable contributor to today's seminar. It is our honor to have you with us, sir. To begin with the seminar, students take the benefits of this opportunity, make it an interactive session by asking questions, giving suggestions and opinion. Sir, now I would like to request you to continue with the seminar, please. Thank you. Again, good afternoon. Actually, the introduction given by sir is not that great what I feel. What I have achieved here because of the continuous learning. And you may say the time I spent for the job. Okay, but I don't know many of you how much time you have planned for your job. That is most important. May I know how many of you can spend like 14 to 18 hours in your job if you have that kind of job role? Raise your hand, please. Nobody, right? But we are spending. Okay. So in initial days when I joined as a management training in Suvisha Trading Services Private Limited, where I was joined as only as a warehouse manager, simple. Okay. But in fact, within 6 months of time, I was promoted head purchase for 135 retail outlets spread across Delhi and NCR, right? And with a volume of 100 metric ton of fresh merchandise. And you just imagine the company which just started, how much time, okay, we have given for that job. Even for 15 days, I only took Naril Pani to survive. That means that kind of pressure to cater 135 stores. I don't know how many of you can like do that kind of challenge if it comes in your way. Okay, that leads your path in future. Right? Am I clear? Am I audible? Yes. So now coming to like supply chain. It is a supply chain, if you say, it is really a vast. Vast means vast. Okay. There is small segments which I will just go through. One is your buying, first initial stage. Okay. It is the one primary part of your supply chain. Right. Then secondary comes to your vendor management. Okay. Third comes to your logistics. Fourth
it will come to your warehousing. Okay. Fifth comes to your distribution. Okay. In between, in warehousing, there is an operation. Okay. So in total, I am talking about warehousing means it is a warehouse operation part. Okay. So distribution means which you cater to your end customers. Okay. Then lastly is your customer service. Means what you serve. So there should be a proper delivery pattern. Delivery in the sense satisfaction to your end customers. Right. So I will try to cover all the parameters which I told. Okay, in the supply chain dynamics. Okay. So in between, if you have some questions, you can. Because in between, if you have, because in between, if you ask, then it is better that I can tell you the exact meaning of those discussions, right? So let me come to first to your buying part, okay, which is my core strength, right? I negotiate to that extent, okay, which I am currently I am giving almost 35% gross margin to my company. Okay, 35%. And out of that, if I count everything you negate, right, we are gaining 3 to 4%. Everything, every cost you negate, then 3 to 4% of our net income, which is very huge because every day we are catering 60 to 70 metric ton of fresh merchandise to all 152 retail outlets. Right? So in that, you have to encounter with many parameters. One parameter is from where you are going to buy. That will decide your buying power, means your pricing. Okay. So there is 3-4 parameters which we buy, like farmers. Directly we are going to the farmers and taking it. And second, the middleman, because some of the areas we can't go there. But what we do, we choose some good middlemen who can bring good material for us with our quality parameters, right? And third is vendor. Vendor, what do you say vendor? Your middleman is also a vendor, but why I said middleman? To make you understand better. Okay. So in buying, 3 parts are there, key functionaries are there. One is farmer, right? Even if you go by others also, if you go grocery, let's say, okay. So then you have to go from farmer only, anything, price. Okay, farmer is there, middleman is there, and vendor also there. Okay. In normal way, if I go for fresh merchandise, that also exactly same. You have to take from farmers, from middlemen, and from vendors, right? Now the point comes the negotiation part. Can you just have you understand the negotiation? Anybody? Anybody? Please speak up. Anybody know negotiation? Conversation? No, not conversation. Bargaining. No. Yes, bargaining. Correct. So negotiation. Whenever you go to the, how many of you go to market to buy vegetables? Sorry. Okay. So how many of you like negotiate नहीं थोड़ा 2 रुपए कम कर ले भाई? Everybody, right? It is the basic. So same way, when we buy in tons. So our buying power is more than what you do. Correct, na? Yes, sir. But in that buying power, there is certain parameters you have to take care. Okay. What are the parameters? Because you cannot negotiate abruptly. You cannot. Okay. Otherwise, you face resistance from each of the functionaries. Right? What are the parameters? The parameters are what the
wholesale is driving? What is the wholesale is driving, and what quality you are want to buy, right? And what price is driven by the retailer, right? Suppose for example, any article you choose, right? First, there is an article, example, potato is okay? Okay, na? Okay. So now the wholesale is going on 600 kg, means bag 49 kg, right? But will you be able to sell in that format? No. That will come into, it will be, you will grade it, sort it, then it will go to directly to your warehouse, right? From there, then there is operational cost will be involved, your logistic cost involved, then it will come to your store, right? Yes or no? Right now, but what you negotiate, कि boss wholesale में ये चल रहा है, wholesale is this much, what price you will give me? Okay, how you will decide? How you will decide the price of potato? Just speak out. Okay, fine. See, you have a wholesale bag, right? But you need your quality. What you will do? You will do a sorting day, right? So you segregate all that which is not required by you. Then you have to put in your Excel. Okay? भाई ये मेरे को नहीं चाहिए, सिर्फ this much quantity I need out of that. It may be 30%, 40%, 50%. Correct? Yes or no? Yes, sir. Okay. On that basis, you will calculate your cost. Okay. Is it right way? No, absolutely no. Because you have to also see the cost you are giving. Is it matching to the price what retailer is selling? Yes or no? Yes. If retailer is selling 25 rupees, but your cost is coming around 20 rupees, then somewhere you are wrong. Yes or no? Then how will calculate? There comes your negotiation power. How you bring that cost to the level which you want to buy or your company want to buy. That means there is a 30 to 35% margin you can draw, because your supply chain cost itself is 15 to 16%. Your employee cost comes around 2 to 3%. Okay, so overall together only 3 to 4% of net margin which is left for your company. Am I clear? Yes, sir. Am I clear? Yes, sir. Okay. So now anything you want to ask on negotiation part? No question? Fine. So how do we negotiate? Yeah? How do we negotiate? What I was telling. Sir, पहले आप एक दो जगह पूछने के बाद तो negotiate करेंगे ना? नहीं, मैंने 3 चीजें बताया. एक है आपको होलसेल का नॉलेज होना चाहिए, करेक्ट है? Then what retailer is selling? Same चीज retailer is selling. Yes or no? Yes. तो आपकी होलसेल और रिटेल के बीच में कितना गैप है? जितने में गैप है उसको गैप है. इट इज कमिंग अराउंड सपोज 40%. ओके, तो आप जब खरीदने जा रहे हो वो आपको बोल रहा है कि रिटेलर से आपको 20% गैप में बोल रहा है, तो हम उसको 30% 35%. आप उसको 30% पे लेके आना. दैट योर स्कीम कम्स इनटू प्लेस. आप कितने अच्छे से उसको नेगोशिएट करके उसको उस प्राइस पॉइंट पे, जो प्राइस पॉइंट पे आपको चाहिए उस प्राइस पॉइंट पे आप लेके आते हो. दैट इज द मेन कोर पार्ट ऑफ नेगोशिएशन. ओके, दैट मींस if you dip to 30%, I am not saying 30% is the cutoff. You can bring it to 32% also. But minimum is required. What company says कि भाई मुझे 30% चाहिए. Now comes into place कि हर चीज में 30% ले आओगे. कुछ चीजें में 25%. Yes. कुछ चीज में 40 भी लाओगे. तो ऑन एन एवरेज में आप जब बाइंग करोगे तो आपका 30% आना चाहिए.
right na? Am I right or not? Now second part comes into your warehousing part. Now हमने टाइम कर लिया. अभी same thing will go to your warehouse. अब कितने लोग इंटरेस्टेड हैं ऑपरेशन में ज्वाइन करने के लिए? नहीं थोड़ा जो हाथ उठाओ यार, तो ऐसे थोड़ी ना मतलब है. चार बंदे बस. मुझे तो बोला गया कि एवरीबॉडी वांट्स टू जॉइन इन ऑपरेशन. स्ट्रॉन्ग मार्केट. हां? स्ट्रॉन्ग मार्केट. नहीं मार्केटिंग तो अलग बात है, बट एटलीस्ट समबडी हैव इनर कि मुझे ऑपरेशन में जाना है. One lady is in operation, okay? बेटा नहीं, ओके फाइन. तो जितने भी अभी आपने हाथ उठाया, तो एवरीबडी इज रेडी टू स्पेंड 18 आवर्स. Am I right? 18 आवर दे सकते हो? मुझे तो नहीं लगता भाई. हाँ? पैशन कौन सा पैशन बताओ मुझे. 18 आवर में कौन सा पैशन आपका निकल आएगा? हाँ? चलो ठीक है, 1 लाख रुपए मिल गया. चलो क्या करोगे? आपके पास टाइम ही नहीं होगा. चलो 1 लाख रुपए मिल गया आपको. इमेजिन करो आपको 1 लाख मिल गया. आपको 18 आवर देना है जॉब में. ओके, तो क्या करोगे? पैसे तो खर्च नहीं कर पाओगे. हाँ हाँ कैसे करोगे? हाँ वही ना, हम अभी खाना खाते हुए फोन आ रहा था. खाने का स्वाद भी नहीं पता. कैंटीन में स्वाद भी नहीं पता मुझे. Even I could not taste food properly. वो आपको माइंड से, अगर इफ यू वांट टू रियली जॉइन इन ऑपरेशन ना, आपको उस हिसाब से माइंड सेट बनाना पड़ेगा. नहीं बॉस, मुझे इतने आवर जॉब को देना है. ठीक है, आपका माइंड अगर मतलब स्ट्रीमलाइन हो गया आपकी जॉब की तरह, जैसे हम अभी मतलब अभी तो फोन साइलेंट कर दिया है, अदरवाइज कंटिन्यूअसली कीप ऑन रिंगिंग, राइट? कंटिन्यूअस टिल 12 o'clock. इसके बाद मैं फोन साइलेंट कर देता हूँ, अदरवाइज वो भी नहीं हो सकता. ठीक है, व्हाट माय बेसिक गिविंग यू द आइडिया इज, ठीक है, एंटर आज की इंडस्ट्री में, एनी इंडस्ट्री. माय ब्रदर इज आल्सो इन TCS, सीनियर कंसल्टेंट. ही इज आल्सो वर्किंग 18 hours a day. ओके, एवरीबॉडी करती. ओनली एक चीज है, टीचिंग को छोड़ के. टीचिंग इज अ कूल जॉब, राइट ना? बट रेस्ट अदर एवरी जॉब आप कुछ भी कर लो, यू हैव टू गिव टाइम, मच टाइम. ओके, तो अगर उस माइंडसेट को आपको आ गया, तो ऑपरेशन आपके लिए इज ए गुड वर्क एंड यू एंजॉय, लिटरली यू एंजॉय, because you have to manage huge manpower, huge third-party manpower. Means if I say for me, when I was in ITC, I used to manage almost 300 indirect manpower and 30 direct people, 5 locations. Okay, so just you can make out the scenario. Right? Okay, fine. Now comes to the topic. Warehouse operation. So, can you just basic idea operation? What in your mind says कि operation means this is? Production. Sorry? Production. Manufacturing production तो मैडम वो तो फैक्ट्री में आ गया. Operation means आपको सामान आपके पास आ गया. Then you have to do other part. Yes. No. First. One by one you can just sequence wise can somebody tell? Yeah, please. रॉ मटेरियल आने के बाद हमें स्टोर करना है, एंड स्टोर करने के बाद हमें फिनिश प्रोडक्ट बनाना है, रिटर्न सप्लाई करना है. See, अब तो दो तरह का वेयरहाउसिंग होता है. एक होता है अनफिनिश्ड और फिनिश्ड.
ऑन फिनिश्ड गुड जो है वो बहुत इजी है. लिसन, ऑन फिनिश्ड गुड इज वेरी इजी ऑपरेशन. क्यों? रिसीविंग आया, ओके, आपके पास मटेरियल आ गया, यू जस्ट put it in the batch wise or you may say you maintain FIFO. Everybody know FIFO? What is that? Yes. You have to maintain that and you simply dispatch. Simply. Right, na? And it will go to only one factory or your processing unit. Okay? But the major operation comes into the finished goods. Okay? Any हमारा जैसे आप Reliance का सोचो, we used to get 170 products, and that is fresh merchandise. And if you go to grocery and all that, it is some thousands. It is some thousands, right? So there comes the challenge, right? Please sit down. Okay, there comes the challenge. What the challenge is? The challenge is to ensure that each and every product is kept properly, with the proper weight, with proper documentation, right? Then you have to cater to the end customers. Okay, you have multiple customers, you have finished goods, you have multiple customers, means you may say like us, it is 135 stores we have to cater, 135 stores, right now. And like that, if like I am talking about ITC, we have 40,000 apparel, means style, you may say na, full sleeve, half sleeve, check, like that 40,000. So that we need to cater to all India, pan India. Correct na? So we have to put it in a, we have 10,000 bins. Bins, you understand? Bins, small bins where you keep your shorts, trousers, okay, track pants, shorts, like that, okay. But now coming into the simple, as I said, operation, your comes first into receiving, okay. Now, like operation, you may say some people will in a vast scale like McCain, you may be a receiving in charge. Salary is good, but the work is also challenging, right? There in McCain it is almost 98 type of products. Okay, so entire you have to keep in proper way. You have to maintain the FIFO. Then you have to disperse the penalty. Right? Operation, you may say, how many of you think the operation अगर आया गया, यही operation है? कितने लोग को समझ में आता है कि operation भाई आ गया, रख दिया, भेज दिया? बोलो? हैं? बताइए? क्या समझ में आया? नॉर्मल आप जो अभी दो तरह जो ऑपरेशन बोले थे जो फास्ट थे तो आया था Yeah, वो तो मतलब unfinished goods है. I'm talking about finished goods because that is the major challenge comes. जो आपके आगे फिनिश होगा या जो ऑलरेडी फिनिश हो चुका है? फिनिश होके आएगा आपके पास. जो फिनिश होके आएगा तो आप उसको स्कैन करेंगे आप लोकेट. Receiving वो part receiving सारा phase हो जाएगा. I'm not going into detail. Receiving आ गया आपके पास आ गया. Then you have to keep it safely. Right? Then you have to make it batching for to catering to different customers. Like on their demand, right? किसको हाफ शर्ट चाहिए, किसको फुल शर्ट चाहिए, किसको जैकेट चाहिए, किसी को कोट चाहिए. So on that basis you have to pull and then dispatch. Okay. In the entire operation, if somebody join as a operation in charge, okay, like warehouse manager हो गया, या फिर shift in charge हो गया. आजकल तो shift in charge भी MBA लोग join कर रहे हैं in good package because in a large vast scale they have now divided into multiple sections. One receiving, one internal operation, and another is inbound, in-house, outbound. The real challenge comes in when the material comes into your place to keep it safely and cater to the required customers. Okay,
इन ए राइट वे। व्हाई इज ए राइट वे? मींस कस्टमर को अगर ए चाहिए, आपने बी भेज दिया तो गड़बड़ हो गया ना। ये मल्टीपल टाइम हमारे साथ भी होता है। रिटेल स्टोर पे पहुंचा, वहां से फोन आ गया, अरे मैंने तो ये मांगा था, आपने बी भेज दिया, और डॉक्यूमेंट क्या बना होगा, ए का बना होगा। ये सुनो, तो फिर उसको पूरा साइकिल हमें घुमाना पड़ता है। देन वी हैव टू रिवर्स ऑल एवरीथिंग, देन अगेन वी हैव टू डू द बिलिंग, देन उसके बाद ऊपर से गाली सुनो, वो एक एक्स्ट्रा रहता है, राइट ना। उसमें एक और बड़ी चीज होता है आपका, which is most critical part, ऑपरेशन डॉक्यूमेंटेशन, राइट। तो आपके पास जो मटेरियल आया, आप तो उसको फिजिकली तो नहीं रख सकते ना कि आया मुनीम की तरह मैंने लिख दिया भाई ये आ गया, ये आ गया, ये आ गया। ओके, देयर इज दिस सोफिस्टिकेटेड सॉफ्टवेयर ERP is used to maintain that। आपको पता है यहाँ पे एक रोल प्ले होता है इन्वेंटरी मैनेजमेंट। कितने लोगों को पता है इन्वेंटरी मैनेजमेंट? हाउ मेनी ऑफ यू नो इन्वेंटरी मैनेजमेंट? इन्वेंटरी मैनेजमेंट इज अ हाईली पेड जॉब आज की डेट में, हाईली पेड, बिकॉज उसके दारोमदार में सब कुछ रहता है। कौन सा मटेरियल एक्सपायरी होगा, कौन सा मटेरियल को पहले निकालना होगा, कौन से मटेरियल को उसको मैनेजमेंट को एस्केलेट करना पड़ेगा कि भाई ये मटेरियल तुम्हारा एक्सपायरी होना है, एक्सपायरी होना है, इसको निकालो जल्दी। इट्स नॉट ए स्मॉल रोल बट इट इज बिगर वास्ट, इसलिए इसको कंप्लीटली सेपरेट कर दिया गया है। इन्वेंटरी मैनेजमेंट को एंटायरली सेपरेट, और वो जॉब बहुत कूल जॉब है, बट सर पे ना एक तलवार भी लटकता है। अगर आपकी रिपोर्ट गलत हो गया तो कितने लाखों का सामान नुकसान हो जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा। इस रूम में मतलब मेरे को बताओ, हाउ मेनी ऑफ यू नोज एक्सेल इन अ वेरी डिसेंट वे? डिसेंट मतलब समझ रहे हो ना? मतलब आपकी जो उंगली है ना, सिस्टम में थिरकना चाहिए। अगर नहीं है, ठीक है, and anybody wants to enter into operation inventory management, okay, please, okay, without wasting time, learn as fast as possible, correct ना? सिंपल आज की डेट में मेरे अंदर 6 लोग हैं, ठीक है, और हमारा पहला क्वेश्चन होता है कि भाई आपको एक्सेल आता है कि नहीं आता है। हम पहले ट्रेनिंग देते हैं, हम उसको रॉ डाटा देते हैं, इसको बना के दो। पहला स्टेप वो हमारा होता है। पूरे दिन में हम लोग 20 रिपोर्ट बनाते हैं, 20 रिपोर्ट, राइट। तो उसके लिए एक्सेल चाहिए ना, जो 10-15 मिनट काम है वो हमें 2 मिनट में चाहिए, राइट। उसके लिए एक्सेल चाहिए, ठीक है ना। बट उसके लिए अगर एनीबॉडी इन ऑपरेशन, मैं अभी से बता रहा हूँ, इन्वेंटरी मैनेजमेंट इज ए वेरी क्रिटिकल एंड वेरी सोफिस्टिकेटेड जॉब रोल, ठीक है। उसके लिए एंड इज ए हाईली पेइंग जॉब, हाईली, ठीक है। अगर आपके लाइक जैसे मैकेन हो गया, यूनिलेवर हो गया, बाटा हो गया, अगर आपको इन्वेंटरी मैनेजमेंट करने को आ गया, मतलब मिल गया, लकी। पूरी आप सोचो, जैसे मैं बाइंग मेरा 100 मिलियन का था, ओके, तो सेम 100 मिलियन का मैनेजमेंट उसके पास भी था, राइट ना। मैं तो बाइंग कर लिया, बट कोई तो मैनेज करेगा। मैं लाके पटक दिया, मेरा जॉब खत्म, उसका रोल स्टार्ट हो गया। कौन सा लॉट को कब निकालना है, कौन सा लॉट को कौन से फैक्ट्री में देना है, राइट, वो पूरा उसका रहता था, समझ गए ना। तो इफ एनीबॉडी want to enter into that dynamics, okay, mindset अभी से बनाओ and you learn as fast as possible। अगर किसी को ये चाहिए कि चलो यार बाहर नहीं जाना है, ये धूप में नहीं घूमना है, तो इन्वेंटरी जरूरी है, ठीक है, राइट ना। अभी इन्वेंटरी मैनेजमेंट को डिटेल में, मतलब देयर इज ए वास्ट these things, I will cover it later, but
इन्वेंट्री मैनेजमेंट ये समझ लो, आपके पास इफ यू हैव ए हाउस, राइट, आपके पास सामान आ गया, उस सामान को देख रेख करने वाला जो सुपरवाइजर है आपको, पूरी एंटायर पूरा आप उसके पूरा दारोमदार हो। अगर आप चाहोगे तो उसको बर्बाद कर दोगे, चाहोगे उसको मतलब, राइट ना। इसमें एक चीज बहुत क्रिटिकल होता है इन्वेंट्री मैनेजमेंट का, वो ये होता है कि आप जो सामान आपको दिया गया है, ठीक है, उसको किस हिसाब से उसको आप मैनिपुलेट करोगे। मे बी दैट वर्ड इज रॉन्ग, मैनिपुलेशन इन द सेंस कैसे उसको चर्न करोगे, चर्न मतलब समझ रहे हो ना। क्योंकि क्या होता है, आपको सेल्स वाला आया, आपको बोलेगा भाई मुझे वो अभी यूएसए से आ रहा है, एंड ऑफ सीजन से आ रहा है, मुझे पता है कितना स्टॉक पड़ा है। तो वहां पे अगर आपको एक्सेल स्ट्रांगली आया होगा तो वहां पे मल्टीपल ये में रिपोर्ट देना पड़ता है, भाई ये पहले से आया, ये भी पड़ा है, ये इतने दिन से आया, इसका फास्ट, बहुत सारी चीज होता है जो आप ऑन द जॉब रोल आप सीखोगे उसको, बट दोस थिंग्स यू हैव टू कीप इन माइंड। और आपकी इन्वेंट्री मैनेजमेंट सबसे ज्यादा पाला पड़ने वाला है मार्केटिंग वाले से, वो आपको ना जीना हराम कर देंगे, लिटरली, ठीक है। इनको सेल अगर कम हो गया, आपकी सेल अच्छा होता है तो बढ़िया बढ़िया फर्स्ट क्लास है, अगर सेल कम हो गया ना तो समझ लो आपकी वो रिपोर्ट निकालेंगे, सर देखो मैंने मांगा था, इन्वेंट्री वालों ने बोला नहीं है, अभी मैं देख रहा हूँ रिपोर्ट है, तो मेरा सेल तो गया। यही गलत है, सही बोल रहा हूँ ना, गलत बोल रहा हूँ, ठीक है। Now anything you want a brief on operation, किसको समझ में नहीं आया, कुछ आया, कुछ डाउट है, you can ask. किसी को कुछ भी डाउट नहीं है, इसका मतलब आप लोग सुन नहीं रहे हो। मैडम ने जबरदस्ती बिठाया है, भाई कोई इंडस्ट्री से आया है, 1 घंटा लेक्चर देगा, ठीक है, उसके बाद हम चिल मारेंगे, बकवास सुनना नहीं। ऐसा है क्या? नहीं, मेरा भी माइंड ऐसा ही था। When I was in मैनेज, ओके, हम भी ऐसे ही सोचते थे। हम उस समय ये सोचते थे हम ही ज्ञानी हैं, बाकी सब तो देखा नहीं। एक प्रैक्टिकल बात कर रहा हूँ, ठीक है, ये होता है। ये जो सामने बैठा है कुछ नहीं जानता, वहां पे जो बैठे हैं सब जानते है कि नहीं? ऐसे होता है। आप बताओ, मैं डू नो आई एम मैनेजिंग साइकोलॉजी, ये साइकोलॉजी आता है, ठीक है, बट कीपिंग इन माइंड क्वेश्चन पूछोगे ना, देन यू हैव योर माइंड विल रन, कुछ डाउट आएगा, कुछ आएगा, क्योंकि ये आपको ना इंटरव्यू में हेल्प करेगा। मैं बता रहा हूँ, इंटरव्यू में ये समझो जो बंदा पूछ रहा है ना, कि he is much more knowledgeable than you। आप तो बुक पढ़ के जा रहे हो, वो बंदा प्रैक्टिकल काम करके आया है, तो आपको वहां पे ग्रिल करेगा। तो अगर आप ये जो सेशन हो रहा है उसको ठीक से इम्बाइब नहीं करोगे, आई एम नॉट सेइंग नोट करो, ये करो, वो करो, बट अगर इम्बाइब ठीक से नहीं करोगे ना तो इट इज डिफिकल्ट टू फेस, राइट ना। अभी किसी को डाउट है कि आगे चलूं? आगे चलूं? अच्छा, मुझे डाउट है, मुझे क्वेश्चन पूछना है। मुझे थोड़ा एक बंदा को खड़ा होकर बताया, इन्वेंट्री मैनेजमेंट बारे में जो बताया मुझे 5 मिनट बस बता दे कि मैंने क्या बताया, क्या क्या चीज होता है उसमें। कौन खड़ा होकर बताएगा? Please. After the production is finished, Yes. then the production product will go to the warehouse. The production is ready to serve to the people, to the right people, or it is
checked by the inventory manager. So it is the work of the inventory manager. Small part. That is good. So see what I am saying. When I talk about that, it is my practical. Well, I have been into those areas. Okay. So that's why I have prepared a slide, but I'm not giving that. I'm just sharing my practical what I did in entire my career. Okay. I have been into that we will discuss multiple MNCs I work. Okay. So those things I am just sharing with you so that you will know how industry works, how industry operates, and how industry behaves in the workplace. Right. The best part is if you, because here what you learn, okay, hardly 5% you will utilize in your job role, hardly. But why it is required? Because that gives you those kind of knowledge or scenario, okay, which you can implement in that job role. Right ना? आपके यहाँ पे मैनेजमेंट थप्पा बन गया ना, तो लोग आपकी नजरिया चेंज हो जाता है। मैं मैनेज से हूँ, ओके, which is the second highest grade college in India, right? but हम IIM से नीचे हैं। जिसका IIM का ठप्पा बजा ना, वो अलग बात है। ठीक है, तो अभी आप मैनेजमेंट पढ़ रहे हो ना, तो यू शुड बी हैप्पी कि आपके मुंह में ठप्पा है मैनेजमेंट का। ठीक है, तो उसको आप यूटिलाइज करो। और उसको यूटिलाइज तभी कर सकते हो इफ यू गेन मच द नॉलेज, तब जाके आप उसको इम्प्लीमेंट करोगे। क्योंकि एक चीज ध्यान रखो सब लोग प्लीज, जब आप इंटरव्यू देने जाओगे ना, सभी क्रैक कर लोगे, yes or no? But few will sustain or few will grow. I am bluntly, openly I am saying. Okay. I have started my career small thing. I have started my career from Radhakrishna Foodland. I changed almost 8 companies. Okay, in a faster mode. But that is possible because I give that much time to the organization and learn that first. आपको उसी हिसाब से अगर केस में जाना है, तो आपको कितना मेहनत और उतनी तवज्जो अपनी जॉब पे देना है। राइट ना? मैं राइट रख रहा हूँ। कितने लोगों को 6 महीने में प्रमोशन चाहिए? नहीं चाहिए? सबको चाहिए। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? बस मेहनत। अभी मैं बोलूँगा तो बुरा लगेगा, मेहनत तो वो भी कर रहा है। हाँ? नहीं, परफॉर्मेंस उसका भी अच्छा रहता है। ये आपको वही बंदा आगे जाएगा जो आधा घंटा काम 10 मिनट लेके बॉस के पास जाएगा। ठीक है, ये बात ध्यान मान लो। जो बंदा आधा घंटा काम 10 मिनट में कर सकता है और वो स्किल उसके पास है, ठीक है, वही जाएगा आगे। और मैनेजमेंट तो ऐसा सोचते हैं कि ये हाइब्रिड है, मतलब उसको 2 मिनट चाहिए उनको। मेरा बॉस तो रोज भी बोलता है, क्या यार तू मैनेजमेंट में ये इतने देर लगता है तेरे को? अरे भाई, एक्सेल तो टाइप करने के लिए तो 2 सेकंड 10 सेकंड चला जाएगा, उसको 5 सेकंड में कहां से लगा दूंगा? ये सर नो नहीं, इसके भी एक रीजन उसने बताया कि मेरे बॉस ने मुझे 10 मिनट दिया है, तो मैं तेरे को 5 मिनट दूंगा ना। करेक्ट है ना? अगर मेरे को 10 मिनट देगा तो मैं आराम से करूंगा, तो बॉस उसको ठीक 9 मिनट ये 59 सेकंड में फोन करेगा, अरे भाई वो दिया नहीं तूने भाई, तो इसलिए मुझे 5 मिनट दिया। उसको जानता है 5 मिनट उसका हाथ में बफर में है, राइट ना? उतने में तो दे ही देगा, मेरा गाली सुन के या मेरा 10 कॉल सुन के दे ही देगा वो। तो बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट मेंटालिटी। और रोज गाली दो बॉस को। केस में मत दे देना, उसी समय नौकरी चली जाएगी, उसी समय यार, देर भी नहीं है बात। ठीक है ना? चलो अभी नाउ कमिंग टू द टॉपिक। ऑपरेशन हो गया, बाइंग में पूरा फॉलो हो गया,
सप्लाई में ऑपरेशन हो गया। नाउ वन क्रिटिकल पार्ट कम्स इनटू लॉजिस्टिक्स। अच्छा, लॉजिस्टिक में कौन कैरियर बनाना चाहता है? कोई भी नहीं। अच्छा ओके, लॉजिस्टिक्स में पैसा बहुत, पैसा का बात चल रहा है, बट कैसे कमा सकते हो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। कभी उस रास्ते में चले मत जाना, ठीक है? कैरियर शुरू होते ही एंड हो जाएगा। ठीक है ना? शुरू होते ही एंड हो जाएगा बाबा, और पैसा बहुत। चलो, now coming to logistics. Logistics is the, you may say, a backbone of any operations. Okay. Reason being, हमेशा देखो आप, जो भी आप मैं सप्लाई चेन के बारे में बात कर रहा हूँ, सब लोग आपको बोलेंगे भाई इसको कॉस्ट कम कर, इसको कॉस्ट कम कर। यार एक लिमिट तक आप खींच सकते हो ना, ऐसा नहीं, करेक्ट ना? तो यहाँ पे लॉजिस्टिक में बड़ी एक दिक्कत वाली चीज है, पता क्या है? कॉस्ट। कल कांग्रेस आ गया, पॉपुलेशन बढ़ गया, तो आप लॉजिस्टिक्स कम कर सकते हो क्या? नहीं कर सकते, बिकॉज 40% ऑफ योर जो आपकी कॉस्ट गाड़ी चलता है ना, उसका 40% होता है तेल, राइट ना? तो जैसे ही आपका तेल का इम्पैक्ट आया, लॉजिस्टिक्स में बढ़ गया। लॉजिस्टिक्स का कॉस्ट बढ़ा तो क्या आएगा इम्पैक्ट? कहां से आएगा? कहां पे आएगा? कॉस्ट पे आएगा, राइट? तो कॉस्ट पे जैसे ही आया तो आपका क्या होगा? तो आप मार्केट में कॉम्पीट नहीं कर पाओगे, करेक्ट ना? तो वहां पे रोल आता है लॉजिस्टिक्स मैनेजर का। हाउ एफिशिएंटली ही मैनेज द लॉजिस्टिक्स। लॉजिस्टिक्स तीन तरह का होता है। एक डेडिकेटेड, जो कि अपने पास ना 10 कंपनी का 10 गाड़ी, राइट? और एक होता है कि मार्केट, मीन्स आपका 10 हो गया, ठीक है? और वो मार्केट से क्या करता है? मार्केट में चेक करता है क्या रेट चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, क्या रेट में ले सकते हैं, ठीक है? वो एक चलता है। बट इन हाउस लॉजिस्टिक्स में आपको बेनिफिट वो होता है कि आप कभी भी उस लॉजिस्टिक्स को यूज कर सकते हो। रिलायंस हज 300 ऐसे मेरा 20 अलार्म है, ये बताता है कि ये काम आपका आ गया, ठीक है? तो आप समझ सकते हो कि आने वाले दिन आपके लिए कितने महत्वपूर्ण होने वाले हैं, ठीक है ना? तब आप रोज कोसोगे इसलिए एमबीए क्यों किया, रोज अपने आप को कोसोगे एमबीए क्यों किया। लिटरली आप बता रहा हूँ, जब जॉब करोगे तो मैं कभी हम मिलेंगे, कभी ये बता दो। चलो, लॉजिस्टिक्स में आपका दो तरह का हो गया, एक डेडिकेटेड हो गया, जो इन हाउस, मतलब कंपनी ने 20 लॉजिस्टिक दे दिया, उसका मैनेजमेंट होता है। दूसरा होता है कि यू टेक फ्रॉम द मार्केट व्हेनेवर यू नीड, राइट ना? वहां पे लॉजिस्टिक्स मैनेजर का रोल ये होता है कि डिसाइड्स कि कितने उसको फिक्स लेना है, कितने उसको वेरिएबल पे लेना है। अंडरस्टूड? कितने उसको फिक्स लेना है, कितने वेरिएबल लेना है, डिपेंडिंग ऑन द कॉस्ट, आल्सो फंक्शंस। मतलब फंक्शन में कहने का मतलब ये है उसका आउटवर्ड कितना हो रहा है। अगर उसका पास में उसका इन सर्कल 10-15 किलोमीटर दायरे पे है तो उसको क्या करना चाहिए? डेडिकेटेड ही बेटर है, गया आया मल्टीपल टाइम्स यूज कर सकता है। बट अगर मेरा सामान को मुझे आउट स्टेशन मल्टीपल बार देना है तो मैं क्या करूंगा?
कंपटीशन को ज्यादा भेजना है मटेरियल, मैं क्या करूंगा? डेडिकेटेड यूज करूंगा या मार्केट का यूज करूंगा? क्यों करूंगा मार्केट का? लॉजिस्टिक्स खर्चा कम, कैसे हो जाएगा कम? ट्रांसपोर्टेशन जो आपने बोला कि पेट्रोल का खर्चा होता है, ट्रांसपोर्ट इससे भी होगा ना भाई? हाँ, कैसे होगा? कैसे? कैसे? देखो आप डेडिकेटेड यूज करोगे तो 2 8 फोकस देना पड़ेगा, राइट? बट इफ यू टेक द फ्रॉम मार्केट इज वन वे, बिकॉज़ आपको मार्केट में आके वहां गाड़ी जा रहा था तो भाई वो आपका सामान लेके निकल जाएगा, तो आपको कॉस्ट ऑलमोस्ट 30 to 40% लेस आ जाएगा, ठीक है? तो वो वहां पे लॉजिस्टिक मैनेजर बहुत इफेक्टिवली उसको मैनेज करता है कि मैं कौन सा गाड़ी यूज करूंगा, ओके, कितने फीट का यूज करूंगा। वहां पे भी आपकी मतलब नॉलेज बहुत जरूरी है, वहां पे भी आपको कैलकुलेट करना पड़ता है कि आप कितने फीट के कंटेनर लोगे, आप कितना ओपन बॉडी लोगे कि क्लोज बॉडी लोगे, ठीक है? वो सारी कॉस्ट एक लॉजिस्टिक मैनेजर डिसाइड करता है, राइट? और लॉजिस्टिक कॉस्ट ऑलमोस्ट जैसे मैंने हमारा जो रिलायंस का 15% बियर करता है, सम ऑफ द कंपनीज इट गोज अप टू 20-25%. सम ऑफ द कंपनीज ओके लाइक मेकेन जो कि रेफर गाड़ी यूज करता है, राइट? 25% ऑफ द कॉस्ट इज ऑफ लॉजिस्टिक्स. Am I right wrong? लेकिन लॉजिस्टिक्स में जो भी बंदा अपना कैरियर बनाना चाहते हैं वहाँ पे एक चीज आपको ध्यान देना पड़ेगा, राउंड द क्लॉक यू विल बी ऑन फोन, योर फोन विल नेवर बी स्विच्ड ऑफ, योर फोन विल नॉट बी स्विच्ड ऑफ. जैसे सर ने बताया कि कैसा है, पर उसके साथ भी वो कुछ आपको इनाम भी देगा, आपका टाइम, क्योंकि गाड़ी गया, कहाँ फंस गया, कहीं रुक गया, कहीं चेक पोस्ट हो गया, फोन आएगा, आपको फोन अटेंड करना ही. यू नेवर नेवर एवर कैन स्विच ऑफ योर फोन. कभी इंटरस्टेट मूवमेंट होता है तो वहाँ पे भी आपको ध्यान देना पड़ेगा कि भाई इंटरनेट टाइम कितना है, कितना कम हो गया, क्यों हो गया, क्या हो गया, वो सब एनालिसिस आपको करना पड़ेगा, ठीक है कि नहीं? तो अभी लॉजिस्टिक्स में अभी कौन थोड़ा सा इंटरेस्ट है लर्निंग? उसके अंडर रहता है तो वो नहीं करता, उसका एक एंटायर अलग इंश्योरेंस टीम बैठता है. उसमें मेरा हाइब्रिड गाड़ी है तो इंश्योरेंस टीम अलग बैठता है. जैसे आईटी में वो लोग का डिस्ट्रीब्यूटर भी इंश्योरेंस करके बेच देता है, आईटी डिस्ट्रीब्यूटर जैसे सर्वर्स का ट्रांसपोर्टेशन होता है, तो उसका वो वेंडर ही इंश्योरेंस करा के उनका अलग होता है. हाँ बताओ भाई, किसी को भी इंटरेस्ट नहीं है लॉजिस्टिक्स जाने के लिए? हाँ प्लीज. What is job notice? लॉजिस्टिक बंदा क्या करता है, गाड़ी की मैनेज करता है. जैसे आप वेयरहाउस ऑपरेशन, जैसे ऑपरेशन को आप वेयरहाउस मैनेज करते हो, वो आप गाड़ी के मैनेज करो. गाड़ी का मालिकाना आप हो. जैसे आपने सपोज में एग्जांपल रिलायंस में आपने लॉजिस्टिक ज्वाइन किया, राइट? तो रिलायंस में जितनी भी गाड़ी चलता है, चाहे आउटसोर्स्ड हो या फिर आपका डेडिकेटेड हो, वो सब आपका अंडर आता है. देन यू हैव टू मैनेज इट कॉस्ट इफेक्टिवली. उसकी फ्यूल से लेके उसकी मेंटेनेंस से लेके ओके एवरीथिंग इन योर कंट्रोल रूम. Yes, it's a part of logistics, a part of supply chain management. So I have told you that phase wise I am coming. Okay. So in that, in logistics, आपको आपके पास जैसे मैंने बताया कि हमारा जो लॉजिस्टिक मैनेजर है वो 135 या 150 समथिंग बजट ही मैनेज करते हैं. उसको एक बजट दिया जाता है. ओके, एक बजट मींस ये बजट एक हिस्ट्रिकल डाटा के ऊपर बेस होता है. लास्ट 4 इयर्स से वो क्या ट्रेंड चल रहा है फ्यूल का,
टायर का, ओके वो सब हम लोग मैं भी वो पायलट में बैठता हूँ, तो वो सब हिस्ट्रिकल डाटा के बेस पे फिर बजट डिसाइड होता है, वो बजट आपको दिया जाता है एंड यू हैव टू spend your money in their budget only. ऐसा नहीं है कि आपको खुला दे दिया जितना यूज करना है करो, ठीक है। जैसे मतलब पापा देते हैं ना 10 रुपए देते हैं ना, मतलब पॉकेट मनी के लिए 11 रुपए आता है तो किसी दोस्त को मांग कर भेज देते हैं, वहाँ पे वो भी नहीं है, ठीक है ना, उसको भी नहीं है। एंड लॉजिस्टिक मैनेजर when I was in ITC, okay, so we normally in a day we used to track or we used to monitor almost 50 vehicles. क्योंकि ITC में अपर में था, तो वहाँ पे आपको almost 40 vehicles हम लोग मूवमेंट ट्रैक करते थे। Obviously अभी उस समय क्या होता था, मैनुअली होता था, अभी बहुत हाईटेक आ गया है, there is software which you can monitor गाड़ी आपका कहाँ पहुँचा, किधर पहुँचा, क्योंकि सब लोग ट्रैकिंग मशीन में भी लगा दिया है, तो वो सब। और बहुत से इवॉल्विंग कंपनी आ रहा है, जैसे अभी स्नोमैन लॉजिस्टिक्स है, इज अ वेरी इवॉल्विंग कंपनी, ठीक है। तो you can Google and you can see multiple companies are they are taking young people because young people टाइम दे सकता है ना, ऐसे। उसके बाद जब आपका पूरा थक जाओगे तो दूसरे कंपनी स्विच करके फिर आएंगे, फिर फ्रेशर को लेके जाएंगे। फ्रेशर के पास पता क्या है, बस ये टाइम ही खींचेंगे आपसे, ठीक है। जब आपका टाइम खत्म हो जाएगा फिर आप क्या करोगे, यार आप स्विच कर दूसरी कंपनी, ये सब नो है, सही है ना। Now any question you want on logistics? What skills are needed? Sorry, What skills are needed? What skills are needed? 24 hours before. सॉफ्टवेयर कोई इतना जरूरी नहीं है, वो मतलब लाइक कोई सॉफ्टवेयर है कोई भी यूज कर सकता है, ठीक है, उसमें कोई ज्ञान लेने की जरूरत नहीं है। क्या रहता है, क्या एसएपी, जैसे हम लोग एसएपी यूज करते हैं, मुझे कुछ पता नहीं था, ओके, देन आई लर्न, ओके, वो मल्टीपल टी कोड होता है, वो टी कोड आपको याद रहेगा, इस फंक्शन में ये टी कोड लगता है, ये फंक्शन में ये टी कोड लगता है, वो आपका बस है। तो लॉजिस्टिक्स में ऐसा कोई ये नहीं है कि आपको एक पर्टिकुलर है, एसएपी में भी है लॉजिस्टिक्स, बट वो आपको पर्टिकुलर 2-3 टी कोड में यूज होगा। बट आजकल जिसे मैं बताया, नाम बताया स्नोमैन, उसका हाई टेक, मेरा दोस्त काम करता है, हाई टेक है उनका प्रॉपर, मतलब आप सुबह जाके ट्रैक करोगे, क्योंकि मल्टीपल गाड़ी दौड़ता है ना, तो कौन सा गाड़ी किधर पहुंच गया, क्या हुआ क्या नहीं, वो सब ट्रैकिंग आता है। वो ट्रैक रिपोर्ट डेली के बेसिस पे आपको करके फिर आप मूवमेंट ट्रैक करते हो, क्योंकि वहाँ पे क्या होता है, क्योंकि जो स्नोमैन लॉजिस्टिक्स है वो थर्ड पार्टी है, because he has multiple warehouses in pan India, complete entire, because he deals with the controlled environment, like medicine हो गया, आपकी imported fresh हो गया, जैसे एप्पल्स हो गया, कीवी हो गया, वो सब हैंडल करता है, राइट। तो वहाँ पे क्या होता है, टाइम बाउंड मेथड होता है, उसका जो एसी कितने घंटे चला, क्या हुआ, वो सब ट्रैकिंग होता है। उसके लिए कोई स्पेशल स्किल नहीं चाहिए, ओनली स्किल इज रिक्वायर्ड योर टाइम, 24/7 आप फोन का ऑन करके, इवन आप रेस्टोरेंट में बैठे हो, किसी के साथ बैठे हो, कहीं पे गप्पे मार रहे हो, बट आपको फोन आया तो फोन उठाना पड़ेगा, नहीं तो अगले दिन इतना मतलब आपको टॉर्चर किया जाएगा, तो फिर बोल नहीं सकते। ज्वाइन कैसे करते हो? बहुत सी लॉजिस्टिक कंपनी है ना, आपको ऑनलाइन में सर्च कीजिए, वहाँ पे जाइए और आप जैसे भी ऑर्डर कीजिए, इजी है। सर जो बोलते हैं ऑपरेशन में बीटेक बच्चों को ज़्यादा प्रीफर करते हैं, बीएससी बीटेक कहाँ पे आप प्रीफर करते हैं, व्हेन देयर इज इंजीनियरिंग कंपनी, मैन्युफैक्चरिंग, यस, जहाँ पे इंजीनियरिंग होता है, इंजीनियरिंग गुड्स होता है, वो बीटेक को प्रीफर करते हैं, बिकॉज़ ही कैन यूज हिज स्किल टू मोबिलाइज दैट इन एनीवेयर एल्स। ऑपरेशन के कौन से डोमेन में मतलब बीटेक नहीं होना चाहिए? नॉर्मल जैसे हमारा वगैरह से, हमारा वगैरह में बीटेक नहीं चाहिए ना, हमारा वगैरह सिंपल मैनेजमेंट स्टूडेंट चाहिए, जो कि सिनेरियो को मैनेज कर सकता है।
मैनेजमेंट का मतलब क्या है? मैनेज करना ना, और क्या चाहिए? ये है ना, मैनेज पढ़ रहे हो ना आपको मैनेजमेंट, तो हम क्या कर रहे हैं? हम मैनेज ही कर रहे हैं। मैं एंटायर पर डे मेरी बाइंग आई एम डूइंग 45 lakhs पर डे। ओके, मैं क्या करता हूँ? खुद बाइंग करता हूँ क्या? मैं क्या करता हूँ? मैनेज करता हूँ। मैं देखता हूँ कौन से वेंडर से कितना खरीदा गया है, कि प्रीवियस रेट से आज का रेट में क्या अंतर है, अगर अंतर नहीं है, बढ़ गया है तो क्यों बढ़ा है, वो एनालिसिस मेरा काम है, राइट ना? तो इसीलिए जैसे आपने पूछा कि लॉजिस्टिक्स में ऐसा कोई स्किल नहीं चाहिए, बस ओनली स्किल इज इक्वल टू कौन सा? सप्लाई चेन में आपको कौन से डोमेन में जाओगे वो इम्पोर्टेंट है। जैसे बाइंग में है तो नेगोशिएशन आपके अंदर होना चाहिए, जॉब रोल में होगा, बट दैट आल्सो गिव्स यू मोर एडेड एडवांटेज जब आप इंटरव्यू में आपको कुछ पूछा जाएगा, क्योंकि एक आपको सिनेरियो दिया जाएगा, ओके, उस सिनेरियो को कैसे आप हैंडल करते हो, राइट? तो वहां पे आपको आपका नेगोशिएशन स्किल जज किया जाता है। इफ यू आर थ्रू देन आपको फिर बाइंग में कोई मतलब यू कैन जॉइन इन बाइंग। एनीबॉडी एनीथिंग? दिस काइंड ऑफ इंटरेक्शन इज मोर रिक्वायर्ड बिकॉज़ उसमें ना आपको बहुत हेल्प मिलता है। Okay, it clarifies you कि how you will face in the upcoming industry। क्योंकि जब इंडस्ट्री वाले आते हैं तो ऐसे तो नहीं कि अच्छा आपका नाम क्या है, ऐसा है क्या, अच्छा चलो तुम थ्रू हो गए, चलो, ऐसा होता है क्या? हाँ, नहीं होता है, इतना इजी नहीं है। वो लोग पूछेंगे आपसे, जैसे अगर बाइंग के लिए इंटरव्यू हो रहा है तो आपको सिनेरियो दिया जाएगा, अच्छा ओके, ये सिनेरियो में आप क्या करोगे बताओ, समझ गए ना? जो वहां पे जिसने भी अपना स्टडी किया होगा या फिर हम जैसे लोगों से कुछ इंटरेक्शन किया होगा, वहां पे वो चला गया अपना तीर कमान, है कि नहीं? हम पता क्या है, हमारे डोमेन में ये जहन में चलता है या जॉब नहीं है, बट प्रॉब्लम ये है कि जॉब बहुत है, पर हम कौन सा जॉब करना चाहते हैं वो इम्पोर्टेंट है, करेक्ट ना? क्योंकि अभी मैं इतना गारंटी के साथ आधे लोग अभी कंफ्यूज हैं मैं कौन से डोमेन में जाऊं, करेक्ट ना? बट मैंने जब मैनेजमेंट ज्वाइन किया था, मैं डिसाइड कर लिया था मैं किस डोमेन में जाना है, वो फोकस होना चाहिए, पहले से डिसाइड होना चाहिए, बिकॉज़ इफ यू आर फोकस्ड देन यू विल वर्क टुवर्ड्स दैट। अगर आप बोलोगे लॉजिस्टिक्स अच्छा लगता है, कैसे सारा बोल गया लॉजिस्टिक्स जाऊंगा, कल कोई और आएगा बाइंग के ऊपर ज्ञान देगा, वो बेकार है यार, बाइंग ही सबसे बेस्ट है, बाइंग ही जाओ, नो। सो दैट इज द रीजन यू हैव टू डिसाइड। जब इस कॉलेज पे कदम रखने से पहले ना प्री डिसाइड होना चाहिए कि भाई मुझे ये बनना है, आप उस दिशा में अपने आप को ट्रेन करो। और मैं गारंटी के साथ हूँ जॉब डेफिनेट लगेगा, डेफिनेट, बिकॉज़ मेरा जो एरिया था, मुझे सप्लाई चेन बहुत पता नहीं क्यों शुरुआत से ही मजा लगा था, वो आई एंटर इन दैट डोमेन, मुझे टाइम वाइज दिखाई नहीं, कोई क्लास में अटेंड करूंगा तो सप्लाई चेन क्लास में जरूर बैठता था 100%। तो अभी आप डिसाइड करो कि कौन से डोमेन में आपको जाना है। अच्छा, हाउ मेनी ऑफ यू, जनरल क्वेश्चन पूछता हूँ, हाउ मेनी ऑफ यू डिसाइडेड कि भाई मेरा सैलरी जो है इनिशियल स्टेज में 70-80,000 तक होना चाहिए। कितने लोग टीचर नहीं, थोड़ा सा मुझे बताओ ना यार, कितने लोग एक प्री नोशन में हो कि भाई 70-80,000 तक होना चाहिए, हैं? फिर तो बेकार है। मतलब कितने लोग माइंड में ये है कि भाई एक जॉब होना चाहिए। नहीं, मैंने देखो 2 क्वेश्चन पूछे, ध्यान से आंसर देना। मैंने 2 क्वेश्चन क्या पूछे, इसको जॉब चाहिए बट इनिशियल पैकेज ये चाहिए, और सेकंड क्वेश्चन पूछा कि आपको जॉब ही चाहिए इरेस्पेक्टिव ऑफ पैकेज।
हाँ हाँ हाँ, अरे बोलो भाई, हाँ थोड़ा लाउडली बोलो थोड़ा। नहीं, तो आप क्वेश्चन को डाइट मत करो, क्वेश्चन को डाइट मत करो। सी सिंपल, मैंने पहला क्वेश्चन पूछा पैकेज के ऊपर, कितने लोगों को वो पैकेज चाहिए, नहीं तो जॉब नहीं करेंगे। सेकंड क्वेश्चन पूछा कितने लोगों को जॉब चाहिए, प्लीज। इसलिए नीचे आया क्योंकि इंटरेस्टिंग टॉपिक है। हाँ नहीं, हाथ उठाओ, ऐसे तो मल्टीपल आवाज गूंजेगी। हाँ ये कौन वाले हैं, सेकंड वाले फर्स्ट वाले? हाँ सेकंड वाले, हाथ उठाओ। सारे सेकंड वाले बैठे। नहीं, सेकंड लोग समझ, मैं दो क्वेश्चन पूछे। जो जॉब चाहिए आप बोले सेकंड में कि जॉब चाहिए, तो वही ओनली जॉब चाहिए इरेस्पेक्टिव ऑफ पैकेज, और फर्स्ट पूछा कि जॉब चाहिए बट पैकेज। हाँ इरेस्पेक्टिव मतलब 15,000 भी हो सकता है, 20,000 हो सकता है, 50,000 हो सकता है, 20,000 हो सकता है, कोई नहीं करेगा। अच्छा ओके फाइन, जस्ट सिनेरियो। आप ये बताओ मेरी इनिशियल पैकेज कितना होगा, एंड बता दो मेरी क्वालिफिकेशन में थोड़ा सा बताया सर, बताया मैं आई एम फ्रॉम मैनेज हैदराबाद, गूगल कर लेना देख लेना, आई एम फ्रॉम मैनेज। अच्छा आप सोचो मेरी पैकेज कितना होगा इनिशियल स्टेज में? 2005 जून। आप जानते हैं मैनेजमेंट का मतलब, मैनेजमेंट स्टडी करने में कितना पैसा चाहिए? हाँ हाँ जरूरत की बात नहीं हो रहा है, जरूरत तो बहुत है, बट आप कितने में सेटिस्फाई हो तो मैटर करता है। सर उस टाइम पे जो वैल्यू चलता है, जैसे कि अभी चल रहा है कि एक सैलरी 30-40 होने से ठीक है। वैल्यू की बात नहीं कर रहा हूँ। I started my career with 10K in hand, but I have a vision. I will reach. बस चलो लीव इट, मैं कितना कमाता हूँ कितना नहीं कमाता हूँ अलग बात है। मेरा एक विजन था कि मुझे आगे जाना है, राइट? नहीं है ना, अभी आपने क्या बोला? सर शुरू में हर कोई लोअर का रहता है, फिर एक्सपेक्टेशन होता है कि हम आगे एक्सपेक्टेशन कब होता है? जब आप वो लर्निंग स्पीड पे जाओगे तभी होगा ना। प्रैक्टिकली करने से। बट अभी तो आपने खुद ही बताया कि भाई 20,000 में जॉब नहीं करना है, खुद ही तो अभी बताया आपने। देखो आप डाइल्यूट मत करो, देखो डाइल्यूट मत करो। क्वेश्चन शुड बी क्वेश्चन, आंसर शुड बी आंसर। आप डाइल्यूट करो, आप क्या करते हो, इधर जाऊं या इधर जाऊं? नहीं, मैंने स्ट्रेट क्वेश्चन पूछा, स्ट्रेट आंसर चाहिए, राइट? हाँ सुनो, एक माइंड नोशन पे मत जाओ कि इतने पैकेज में जाएगा। मतलब मैं ये नहीं कहता हूँ कि मैं जो कह रहा हूँ सही बोल रहा हूँ, बट व्हाट आई इन माय लाइफ आई डिड, मेरा एक नोशन था कि भाई मुझे पहले एंट्री करके एक्सपीरियंस लेना है, ठीक है, उसके बाद तो संसार मेरा है ना, ये सुन लो। तो जब मैंने ज्वाइन किया, आई टोल्ड यू ना, I joined as a management trainee at Radhakrishnan Foodland. Within 6 months after learning, I joined Subiksha. आज है warehouse manager, management trainee से warehouse manager सीधा 2 कैडर जॉब. Within 6 months, then I become the head purchase for Subiksha. Right, that's the job. Why? Why? Because you have skill. राइट ना, यू ऑल हैव स्किल, बट उस स्किल को बेच के कौन आगे जाएगा वो मैटर करता है। आप स्किल को अगर बेच नहीं पाओगे, राइट, अभी बोलोगे नहीं मैं इतना पैकेज में जाऊंगा तो जाऊंगा, तो प्रॉब्लम है। माइंड सेट को चेंज करो इफ यू वांट टू विन इन दिस इंडस्ट्री, करेक्ट ना? पूरा भास्ट है। एक फ्रेशर जाएगा और 6 महीने का एक्सपीरियंस जाएगा, बहुत डिफरेंट है। 6 महीने को पेपर मिलेगा, फ्रेशर को नहीं मिलेगा, राइट ना? तो
आपको उस हिसाब से अपने आप को करियर को डिसाइड करना है, ठीक है? वो माइंड से डिसाइड करो। आप पहले अपने आप को डिसाइड करो कि मेरे पास क्या स्किल है जिसको मैं बेच सकता हूँ, राइट ना? वो स्किल ही आपको पैसा देगा और कुछ नहीं दे पाएगा। मैं बता रहा हूँ, जब मैं शुरुआत में आईटीसी में था, मुझे एक्सेल इतना आता नहीं था। रोज बहुत से काम रोज रोज मुझे टॉन्ट मारता था, तू मेहनत से एक्सेल नहीं सिखाया तुमने, ऐसे। then I one day decided एक्सेल तो सीखना है। then फिर ऑफिस आवर के बाद मैं एक्सेल क्लास ज्वाइन किया, then I threw। अभी मुझे एक्सेल में काम कम करना पड़ता है, बट मैं सीखा, क्योंकि सर्टेन लेवल के बाद आपको एक्सेल नहीं चाहिए, लोग आपको काम करके देंगे। अभी मैं फोन करूँगा, मेरे रिपोर्ट मेरे पास आता है, राइट ना? उस लेवल पे मैं पहुँच गया हूँ, राइट ना? तो बट इनिशियल स्टेज में जब जाओगे तो आपको तो स्किल लेना पड़ेगा ना, वो स्किल को बेचोगे, जब स्किल बेचोगे तभी आपको पैसा आएगा। अगर आप सोचते हो कि अच्छा मैनेजमेंट होते हैं ऐसा तो आएगा, भूल जाओ भाई, ये दुनिया तुमको पूछेगा नहीं, मैं बता रहा हूँ, कुछ भी नहीं पूछेगा। और स्किल जिसके पास है वो दौड़ के आगे जाएगा, ठीक है? ये मैं ब्लंटली, अगर इफ आई एम हर्टिंग एनीबॉडी आई एम सॉरी, बट दिस इज द रियल ट्रूथ। जो स्किल गेन करेगा यहाँ से वही आगे जाएगा, ठीक है? जो स्किल नहीं कर पाएगा एंड ई थिंकिंग मेरे पास एक मैनेजमेंट डिग्री है, कोई भी आके मेरे को उठा के ले गया, भूल जाओ, ठीक है? आपके जैसे बहुत 100 लाइन पे हैं, राइट ना? उसके बाद अगर आप इंटरव्यू क्रैक कर लिए, फिर वहां पे जाके भी अगर आप फेल होने का चांसेस 90% है, क्योंकि वहां पे आपको पॉलिटिक्स फेस करना पड़ेगा, राइट ना? उसके बाद बाकी कुछ चीज़ें हैं, मैं डिटेल में नहीं जाऊँगा, बहुत सारी चीज़ फेस करना पड़ेगा, ठीक है? तो उसको भी आपको क्रॉस करना है, ठीक है? जब वो सब करने के बाद फिर आप बोल पाओ यस नाउ आई हैव अचीव समथिंग। उसके बाद तो फिर तो वर्ल्ड इज नॉट एनफ, ठीक है ना? 6 महीने के बाद जॉब चेंज कर लो, 1 साल बाद जॉब। बट एक चीज मैं आपको ध्यान दूं कि फ्रीक्वेंटली जॉब चेंज करने में प्रॉब्लम है, ये बात ध्यान रखना सब लोग, क्योंकि 4 महीने बाद व्हेन यू विल गो फॉर ए मैनेजरियल कैडर जॉब, आपका सीवी में दिखा देगा कि 6 महीने में जॉब चेंज कर रहा है, विजिट करो। ध्यान देना ये सब, ठीक है? मैं 2 फेस किया हूँ ऐसे, इसलिए बोल रहा हूँ, ठीक है? जब मैं हेड पोजीशन के लिए 2 बार आई फेल्ड, बट एवरीथिंग वाज ये, बस ओनली 1 पॉइंट आई वाज बीइंग टोल्ड बाय एचआर कि भैया आप बहुत फ्रीक्वेंटली जॉब करते हो, दिस जॉब रोल इज रिक्वायर्ड फॉर कंसिस्टेंसी, ये वर्ड कंसिस्टेंसी, ठीक है? तो आपको वो करना पड़ेगा, ठीक है? चलिए अभी और एक लास्ट रह गया, क्या रह गया? यस प्लीज। सर जैसे कि अमित सर बोले कि आप एमबीए में फाइनेंस नहीं थे, तो उसके बाद ऑपरेशन में कैसे? मेरा फाइनेंस भी है, इंडस्ट्रियल रिलेशन भी है, उसके बाद सप्लाई चेन भी है, मेरा 2 डिग्री है। और एक डिग्री ये भाई साहब मुझे फोर्स कर रहे हैं, करूँगा। सर आप 3 लिए थे, जैसे आप बोले कि फाइनेंस भी लिए थे, तो आप ऑपरेशन में सिर्फ क्यों? ऑपरेशन में मैं ऑपरेशन कौन बोला? मैं ऑपरेशन मैं होल पैकेज हूँ, होल पैकेज। मैं मैकेन में आई वाज हैंडलिंग 100 मिलियन पोर्टफोलियो, आईटीसी में आई वाज हैंडलिंग ऑलमोस्ट सेम, ओके? उसके बाद अब सुभिक्षा ऑलमोस्ट सेम, ओके? यहाँ पे डेली 40 लाख का बाइंग में कर रहा हूँ, ठीक है? आईटीसी में मेरा लॉजिस्टिक डिस्ट्रीब्यूशन मेरा था, मैकेन में मेरा बाइंग और डिस्ट्रीब्यूशन था, करेक्ट है? एक आशिया सप्लाई चेन कंपनी था, वहां पे मेरा प्योरली था ऑपरेशन। तो मैं सप्लाई चेन का पूरा डायनामिक्स को मैंने जॉब किया। सर आपको 20 साल में क्या क्या प्रॉब्लम फेस करना पड़ा? प्रॉब्लम सर
like अभी साथ में चलेंगे कॉफी पीने के साथ नहीं नॉट जोक सॉरी टू से मतलब ऐसा कि मैं बोला मैं आपको बोलो कि क्या प्रॉब्लम कैसा है मैं अगर 2 मिनट बोल देता तब तक बोल देता मैं अभी सिर्फ सिनेरियो बता आपको इतने चैलेंजेस फेस करना पड़ेगा ना अगर आप उस माइंडसेट पे नहीं होगे तो बोलोगे भाई बस हो गया चलते हैं यार पापा का कुछ जमीन है तो वहीं पे जमीन कट गई मैं रोज सोचता हूँ मैं रोज सोचता हूँ कि जाके घर में खेती करूंगा लिटरली हम सत्य नोज मेनी टाइम्स वी डिस्कस एंड यू कैंट बिलीव कि कहीं की घर बार आता है ना मैं अपनी वाइफ को बोलता हूँ थोड़ा चाय ले आओ बस हमेशा चाय पीते मैं लैपटॉप पे काम करता हूँ उसके बाद वो करने चलता हूँ थैंक यू इसीलिए तो चल जाता है काम करेगा तो स्किल होगा तो आएगा वो तो सब एरिया में ऑपरेशन काम नहीं करेगा स्टार्टिंग में क्या क्या प्रॉब्लम फेस स्टार्टिंग में ऐसा प्रॉब्लम फेस हुआ मैं एक सिनेरियो बताता हूँ ओके मैं पहला मैनेजमेंट स्टूडेंट आई हैव वेरी क्रेजी एटीट्यूड मैनेजमेंट क्या हुआ मेरे ऑब्वियसली जो मैनेजमेंट स्टूडेंट थोड़ा तो खुरापाती दिमाग होता है कि नहीं होता है कुछ चीज देखे अभी ये तो कॉस्ट इफेक्टिव होना चाहिए क्यों नहीं हुआ तो मैंने क्या किया बोला कि सर ये तो ये जैसे करेंगे तो डेफिनेटली फर्स्ट ईयर में बताता हूँ हमारा डिस्ट्रीब्यूशन था ना राधाकृष्ण फुल लैंड में कि वहाँ पे टेप लगता था सिंपल टेप ओके तो मैंने वहाँ पे आइडिया दिया कि सर इफ वी कैन पुट आवर लोगो टेप ओके तो वो क्या होगा ना कि मतलब शिप में जाता है चारों तरफ तो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी के चारों तरफ चला जाएगा शिप में जा रहा था तो कोई भी देखेगा ना कि राधाकृष्ण फुल लैंड है तो दिमाग में बोल दिया मैंने अगले दिन तुम्हें पता है मेरे बॉस ने मुझे क्या जवाब दिया शुभ्रांशु कल से ना आके ये सब रजिस्टर तुझे मैनुअली लिखना पड़ेगा सर मैं समझ नहीं पाया ये हुआ क्यों ऐसा तो कुछ नहीं है तो बाद में उसके भी चेहरे चपटे होते हैं उनके साथ मेरा थोड़ा अच्छा था भाई मैनेजमेंट स्टूडेंट होके आगे मैं रजिस्टर लिखूंगा क्या ऐसे ही मेरा जिंदगी हो गया है फिर उसने बताया तो तुझे ये जो दिमाग में अगर आया तो अगर बॉस को बोला तेरा बॉस जाके बोलता यू आर गुड तूने वहां पे क्यों बोला था वो फिर किसके सामने बोला मालिक के सामने ये है प्रॉब्लम तुम्हें वहां पे सारा एमबीए करना ही नहीं था सिंपल डिग्री में जाके काम करना तुम्हें वहां पे फील होगा अगर मैनेजमेंट स्टूडेंट को दिया जाएगा रजिस्टर मेंटेन करो बट आई नेवर फील दैट ठीक है भाई तेरा टाइम है मेरा टाइम भी आएगा आज मेरा टाइम है आफ्टर 10 इयर्स मेरा टाइम है करेक्ट ना बट वन थिंग प्लीज कीप इन माइंड जो तुम्हारे साथ हुआ तो तुम उसको अपने सबॉर्डिनेट को मत करना प्लीज करेक्ट ना और कुछ चीज पूछना है और एक है कि आप 18 आवर्स काम कर रहे थे तो आपका कोई करता हूँ तो स्टार्टिंग से अभी तक तो कर रहे हैं कोई पर्सनल लाइफ में कुछ प्रॉब्लम है देखो इसके लिए मेरे को वाइफ को लाना पड़ेगा इसके लिए मेरे को वाइफ को लाना पड़ेगा फिर तो बता पर्सनल लाइफ तो मैं बता नहीं सकता ना भाई Sir, list will be closer. After calling your wife, the list will be closer. यस एंड कोई मेडिकल प्रॉब्लम हाँ अभी मेरे भाई का ऑपरेशन हुआ कॉल कर रहा था उसका फोटो भी है मेरे भाई ने लास्ट को पता डॉक्टर ने क्या बोला सर प्लीज जरा बाहर जाइए पेशेंट को रेस्ट करें ये हाल मतलब छुट्टी तुमको बॉस बहुत क्या सुना तो मेडिकल का फीस दो लेकिन उसके बाद ना तेरे पीछे 10 काम लेके छोड़ेगा अरे सुबह सुबह रिपोर्ट नहीं आया यार उसके फिर आधा घंटा गुजारता है तो मेडिकल में है फिर भी तेरे को फोन करेगा समझ गए अब माइंड में घुसा कि हम लोग किसी तरह का काम करते हैं और किसी को तो बेसिक तो आइडिया आ गया होगा तो बी प्रिपेयर्ड
prepared for those life, and I will what I say, simple say best of luck. Thank you. मैडम एनीथिंग अभी Q&A क्वेश्चन है, आपको पूछ सकते हो जो भी आपके मन में आए, जॉब रिलेटेड, ये रिलेटेड, कुछ भी पूछो पूछो। चलो मैं सामने आ जाता हूँ, पूछो। देखो अपने को सैलरी बहुत अच्छा मिलता है, सब कुछ अच्छा है, मेरा अदर इनकम भी बहुत अच्छा है। अदर इनकम मतलब वो वाला नहीं, मैं शेयर मार्केट में ट्रेडिंग करता हूँ, अच्छा खासा कमाता हूँ, ठीक है, दैट इज माय पैशन, ओके। बट ये है कि यहाँ तक पहुँचने के लिए आई हैव मेड मच मोर सैक्रिफाइस। अभी हमारे है नेहान करके है बंदी, ओके, ही डू द पीओ, ओके। मैंने एक दिन पूछा उससे, मैडम ये बताओ कैसा लग रहा है? सर ये तो ना ही पूछो तो अच्छा है, लड़कियों के हमें भी नहीं छोड़ते आप, तो हम तो लाइक गाली गलौज तो नहीं कर सकते, पर 10 बजे फोन करेंगे, मैडम वो फाइल नहीं आया, दैट इज रिक्वायर्ड, हम कुछ नहीं कर सकते ना। मेरा बॉस भी मांगता है ना मुझे 11 बजे, तो मैं क्या करूँ, मेरे अंडर कौन है, लड़की है, तो मैं तो उसको डांट के नहीं बोलता, प्यार से बोलना पड़ेगा, अरे मैडम फाइल नहीं आया, ये सुन लो क्या बोलेगी कि बाहर है, 10 मिनट तो मिलता उन्हें नहीं मैडम, 10 मिनट नहीं 5 मिनट इतना ही दे सकता हूँ, नहीं तो एक्स्ट्रा धमकी क्या मिलता है, मैडम थोड़ा रुको मैं बॉस को लाएंगे। वेरी इफेक्टिव, लेडी लोगों को हैंडल करने का वेरी इफेक्टिव। अगर जेंट्स होगा क्यों नहीं कह रही अब तक, तो वो थोड़ा डिफरेंट मोड में आता है, करेक्ट ना। तो ये सारी सिनेरियो होता है हमको लाइक मैनेज करने के लिए, ठीक है ना। एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क। वेयरहाउस में मैनपावर का क्या क्या? मैनपावर कौन सा मैनपावर? देखिए 2 मैनपावर होते हैं, एक होता है आपका जॉब इन रोल, और होता है आउटसोर्स। कौन सा मैनपावर बात कर रहे हैं? इन रोल में वही तो बताया ना आपका, पूरी तो उनके मैनेजमेंट तो वही करते हैं ना। जैसे आप गए मैनेज करने के लिए, आप ही मैनेज करोगे ना उनको, कौन मैनेज करेगा? सपोज आप कल से एक वेयरहाउस मैनेजर बन गए, आजकल लेडी रोल को बहुत प्रीफर करते हैं इसमें मैनेजर रोल के लिए, सॉरी। तो आप तो पूरा मैनेज करोगे ना वेयरहाउस को, कि आपके अंडर कोई इन्वेंट्री मैनेजमेंट होगा, सपोज आपको वेयरहाउस मैनेजर हो गए, इन्वेंट्री मैनेजर भी आपके कंट्रोल में रहेगा, शिफ्ट इंचार्ज आपके कंट्रोल में रहेगा, लॉजिस्टिक मैनेजर आपके कंट्रोल में रहेगा, तो आप उनको सबको मैनेज करोगे ना। फिनिश्ड गुड के बारे में आप बात कर रहे थे, फिनिश्ड गुड, वो आप बोल रहे थे कि मतलब लाइक जीन्स के बारे में सोचो कि अगर शर्ट के बारे में सोचो, वो तो फिनिश्ड प्रोडक्ट है, उसको वो तो फिर स्टॉक में आएगा, फिर तो चला जाएगा। आप अच्छा आप बताओ, ये शर्ट है, ये क्या है, ब्लू है, ये क्या है? तो एक कस्टमर इसको 10 मांगेगा, इसको 20 मांगेगा, तो आपको तो लेना पड़ेगा ना, दोनों को लब करना पड़ेगा ना, दोनों को स्कैन करना पड़ेगा ना, दोनों को सिस्टम में चढ़ाना पड़ेगा ना, फिर उसके बाद शिप करना पड़ेगा ना, तो वो कौन करेगा? करेगा ना वो, सेम वे। यस एनीबॉडी? देखो क्वेश्चन नहीं आया मतलब आप लोग टाइम पास किए मेरे 1 घंटा पूरा, लिटरली बता रहा हूँ, लिटरली बता रहा हूँ। अगर मतलब आप ये जो भी मैंने बोला आपको प्रैक्टिकल व्हाट आई डिड, अगर मन में क्वेश्चन नहीं आ रहा है ना, तो इसका मतलब आप लोग बस थोड़ा सा आए तो सुन लेते हैं यार क्या रहता है, ठीक है ना, ओके। अगर क्वेश्चन नहीं आता है तो, क्वेश्चन आता है तो दैट मीन्स यू लिसन केयरफुली, ओके ओके, देन मन में डाउट आता है कि ये है वो है, ठीक है। और मुझे लगता है कि जब भी मैं जॉब के बारे में डिस्कस करता हूँ, बहुत लोग तो इंटरेस्टिंगली सुनते हैं, ठीक है। पढ़ाई तो छोड़ो,
इस जॉब के बारे में बहुत इंटरेस्टिंगली मतलब पूरा जोश के साथ जिसका नींद भी होता है वो खुल जाता है। मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ, ठीक है, वो खुल जाता है पूरा तुरंत। देखो बॉस, जॉब जो है ना कुछ दिन के लिए बहुत मजा देगा, कुछ दिन के लिए बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा, लेकिन जब वहाँ जाने के बाद जो गाली पड़ेगा ना, और जो उसके बाद जो टाइम आपके हाथ नहीं होगा, किसी की बर्थडे पार्टी में नहीं जा सकते, किसी की मतलब कोई गेट टुगेदर में नहीं जा सकते ना, तब आपको जॉब नहीं करना है। ठीक है ना? व्हाट आई सजेस्ट, जैसे मैंने एक साइड सोर्स ऑफ इनकम से शेयर मार्केट में एक्स्ट्रा स्किल मैंने अपने आप को डेवलप किया। ओके, नाउ आई सजेस्ट पीपल, देयर इज अ ग्रुप, तो हम लोग एक ग्रुप है, वहाँ से मैंने स्किल डेवलप किया, तो वहाँ से मेरा अच्छा खासा इनकम आता है। तो कहने का मतलब ये नहीं कि मैं क्या कमा रहा हूँ, ये कहने का मतलब है आप वैसे ही कुछ स्किल डेवलप करो, राइट ना, जो आपको इनकम में हेल्प करेगा। ठीक है, ठीक है, ये बहुत जरूरी है आज के डेट में। मैं आपको बता रहा हूँ, यू हैव टू डेवलप सेकेंड लाइन ऑफ इनकम जेन्युइनली, एंड दैट स्किल यू नीड टू डेवलप। कोई भी डेवलप करो, कुछ भी डेवलप करो, बहुत से सेकेंड ये में है। कंसल्टेंसी एक है आजकल बहुत, अगर आप लोग कुछ मतलब ये हो ना, बहुत लोग आते हैं कंसल्टेंसी, मैं भी देता हूँ। आपको बिलीव नहीं होगा, 1 मिनट के लिए मैं 1000 रुपये चार्ज करता हूँ। आपको फैसिनेटिंग लगता होगा, मुझे भी लगा जब मैं पहली बार जेके सीड्स को, क्योंकि मैं आलू में था, मैकेन में, तो आई हैव एंटायर नॉलेज ऑफ पोटैटो, कैसे होता है, क्या उसका सॉलिड कंटेंट होता है, कितने दिन में होता है, टेम्परेचर वेरिएशन कितना, तो वो मैं पूरा बढ़िया से नॉलेज ले लिया था वो 2 साल में, राइट। तो मेरे को तो कंसल्टेंसी का आया, हाँ बोल देंगे इसमें क्या है, तो बोले सर एक काम करना पड़ेगा, आप घड़ी देख के ना वो टाइम नोट करना, ठीक है। तो उस समय इतना ध्यान नहीं था कि 1000 रुपये मिलेगा, ठीक है, बट सर मिलेगा पैसा आपको। तो फिर हुआ, सेशन चला, वो पैनल बैठे, मैं बैठा, तो 5 मिनट समथिंग हो गया, तो कितना आया पैसा? पहली बार अकाउंट में जो 5000 रुपये आया, तुम सोचो यार, 5 मिनट बकवास करने का 5000 रुपये। इसका कहने का, हंसने का नहीं है, इसका मैं क्यों कह रहा हूँ, जिस रोल पे हो उसका नॉलेज इतना ले लो कि आपको कंसल्टेंसी के लिए बुलाया जाए। जब आप अपना सीवी पोस्ट करोगे ना, तो देखेंगे ना बंदा कहाँ काम किया है, किसको जो जरूरत है, तो आपको कांटेक्ट करेंगे कि भाई एक क्लाइंट है, उसको कंसल्टेंसी चाहिए। दैट इज द सेकंड। यू अंडरस्टूड माय पॉइंट? हाँ, सो दैट यू कैन जनरेट, क्योंकि मैनेजमेंट इज दैट काइंड ऑफ, ये मैंने क्या बोला था, जैसे ही फोन ऑन करूंगा ना तो आ जाएगा। ज़्यादातर मतलब बंद नहीं कर सकता ना, हो गया आने दो, देखता हूँ कौन सा बॉस कहेगा तो उठाऊंगा, बाकी तो नहीं उठाऊंगा, ठीक है। तो आप थोड़ा उसके लिए भी सोचो, क्या आपकी स्किल, कौन सी स्किल आपका बेटर होता है, तो उस स्किल को ना आप बेचो। जैसे मेरा 2-3 स्किल है, जैसे बताया मैंने, एक है शेयर मार्केट, किसी को इंटरेस्ट है, ओके, आई कैन हेल्प यू। सेकेंड है कंसल्टेंसी, ओके, जो मेरा लाइक मानो वीकली 10-15 हज़ार रुपये आ जाएगा, ठीक है, वो फिर ज्ञान देगा, ठीक है। बट ऐसा नहीं है, वो ज्ञान सही होना चाहिए, आप ऐसा तो नहीं कि चाहे कुछ भी बोल दो। यू शुड हैव दैट काइंड ऑफ नॉलेज टू टेल पीपल कि भाई ऐसा होता है, एंड दे विल इम्प्लीमेंट। ओके, आप जानते हैं कंसल्टेंसी क्या, मतलब आपको फ्लाइट में अगर कुछ ज़रूरत पड़ा, ऑन साइट आपको फ्लाइट में लेके जाएंगे, होटल में रुकवाएंगे, फिर मतलब सही ट्रीटमेंट होगा, फिर वहाँ से भी फ्लाइट से आप आ गए, आपको उस समय फील होगा राजा हूँ मैं, ठीक है। तो ये आपको आपकी स्किल
कोई भी जॉब करता है, कोई भी, जैसे मेरा जैसे मैंने बताया सप्लाई चेन में पैशन है, जैसे मैकेन गया, आजकल आप देख रहे होंगे कितने सारे प्रोसेसिंग यूनिट आ गए हैं। पहले तो मैकेन था और शायद 2 थे, ओके, अभी तो 6-7 हो गए हैं। जब मैकेन में आप कुछ कंपनी ऐसे है आपको गाड़ी भी देंगे, रहने के लिए घर भी देंगे, बहुत सारे फैसिलिटी देते हैं। सैलरी थोड़ा मतलब ऊंच नीच होता है पर बाकी फैसिलिटी बहुत देते हैं, ओके। तो उसी हिसाब से आपको अपने ये को चूज करो। एनीथिंग, किसको नींद आ रहा है? और कुछ पूछना है? हो गया? डिस्ट्रीब्यूशन वो लॉजिस्टिक्स या पार्ट में आता है। डिस्ट्रीब्यूशन मतलब ऐसा होता है कि आपके पास सामान है, आपको पहुंचाना है, ओके। अभी क्या है, वो लॉजिस्टिक के अंडर आता था, अभी ये हो गया है डिस्ट्रीब्यूशन मैनेजर। मतलब लॉजिस्टिक देने के बाद वहां पे जब एंड पॉइंट पे पहुंचने तक वो डिस्ट्रीब्यूशन मैनेजर काम है, होता है। अभी क्योंकि देखो जब फास्ट हो गया, बड़ा हो गया, तो क्या करोगे आप? अकेला नहीं कर सकता ना, बंदा नहीं कर सकता ना। उसने क्या गाड़ी दे दिया, भाई देख मेरा काम है, मैं गाड़ी दे दिया। डिस्ट्रीब्यूशन मैनेजर क्या है, वहां से लेके एंड कस्टमर तक पहुंचाएगा, वहां का डॉक्यूमेंटेशन सब देखेगा। ये एक ही पार्ट है। पहले था आपका, जैसे मैंने बताया बाइंग वन था, ऑपरेशन भी लॉजिस्टिक के अंदर आता था। फिर क्या किया, ऑपरेशन से लॉजिस्टिक को अलग कर दिया, ठीक है। फिर लॉजिस्टिक को डिस्ट्रीब्यूशन अलग कर दिया। ऐसे ही मतलब दे हैव डिवाइडेड द रोल्स टू सी क्या है, बहुत मतलब दैट इंक्रीज द फंक्शनैलिटी। तो उसने क्या किया, अब डिवाइड कर दिया उसको। पहले वेयरहाउस मैनेजर रिसीविंग देखता था, डिस्पैच भी देखता था, इनसाइड था। अभी क्या हो गया, इनबाउंड हो गया, उसको नाम दे दिया इनबाउंड। उसके बाद क्या करते हैं, आउटबाउंड, करेक्ट ना, क्योंकि एक बंदा देख नहीं पाया, ऑपरेशन बहुत बढ़ गया, तो इन्होंने क्या किया, डिवाइड कर दिया। और एनीथिंग, कुछ नहीं है? हाँ? हो गया? तो क्वेश्चन नहीं पूछते यार, आधा घंटे का तुमने क्यों नहीं रखा था? अच्छा काली, अच्छा ओके, अगर आप मुझे प्रिपेयर करेंगे सेटा ग्राइंडिंग होगा जी। अच्छा ग्राइंडिंग मतलब थोड़ा प्रोसेस करी सर नहीं, अभी मैं बोल रहा हूँ, अभी से माइंड सेट करो किस में जाना है, और उसी ये में आप फोकस करो, ठीक है। नहीं तो नहीं कर पाओगे, आप बोलोगे नहीं मैं लॉजिस्टिक में अच्छा नहीं हो पाएगा। हाँ, आप एक रोल से दूसरी रोल पे जा सकते हो, बट पहले रोल तो आपको चाहिए ना। फर्स्ट रोल, जैसे मेरा फर्स्ट रोल पहले क्या था, मैनेजमेंट ऑपरेशनल था, फिर उसके बाद मैं मल्टीपल रोल चला गया, क्योंकि उस रोल पे मैंने पूरा उसको चर्न कर दिया, मैंने लर्निंग ले लिया। अब मैंने कहा भाई अब तो मैं लॉजिस्टिक हेड बन सकता हूँ, फिर लॉजिस्टिक हेड मन हुआ कि नहीं, अब तो मैं पैन इंडिया हेड बन सकता हूँ, ओके। इस तरह से माइंड सेट चेंज होता गया, लर्निंग होता गया, फिर देन आई स्टार्टेड, ठीक है। चलो, थैंक यू फॉर योर and for 1 hour you take so much pressure to sit, नहीं वो तो बाद में पता चलेगा, ठीक है। हाँ नहीं, कुछ लोगों का एक्सप्रेशन है, कुछ लोगों का नहीं है, बट ओवरऑल ठीक है। हाँ टायर्ड
I think this session was an eye-opener for all of our students just because they were unsure about which specialization they are going to opt for. So I think from this session of today, at least few people got the sense of what is operations, what is the impact of choosing operations as one of the specializations. So I think many of them have gotten some idea regarding this. Thank you so much, sir, for such a wonderful and informative session. Indeed, the session was filled with so much of information and you went the depth of the topic to make our students aware and understand about suggesting suitable examples, and you shared the live practical experiences, which is of course different than the bookish theoretical knowledge. Our students must have gotten some ideas related to the topic which has been delivered today and hope they will implement all those things in their professional and academic forum. We are absolutely privileged and honored, sir, for listening you deliver and letting our students know the different aspects and implications of supply chain management and its performance. Thank you so much, sir, once again for the engaging session. Thank you all for being so cooperative and supportive to make this seminar a huge success. Thank you so much.